Today we will discuss various pressures applied on plant cells, such as number 1 osmotic pressure OP, number 2 Turger pressure PP, wall pressure WP, and DPD, diffusion pressure deficit. diffusion pressure deficit जिसे DPD कहते हैं, diffusion pressure deficit. First of all, I explain osmotic pressure. Osmotic pressure is the minimum necessary pressure. OP is minimum necessary pressure which needs to applied to a solution that prevent incoming flow of solvent. That is called osmotic pressure. Osmotic pressure is the minimum necessary pressure which needs to apply to a solution that prevents incoming flow of solvent. And osmotic pressure of a solution depends the number of solute particles dissolved in it. प्रासरण दाब वह न्यूनतम आवश्यक दाब है जो कि किसी विलयन पर अप्लाइड होता है, लागू होता है, और वह अपनी ओर विलायक के अणु को आने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। और किसी भी विलयन का प्रासरण दाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें विलेय के कितने अणु या कण घुले हुए हैं। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज वी हैव ए बीकर, we put a semi-permeable membrane in between two different types of solution. Here is 100% water and here is 10% sugar solution or salt solution. Two different concentration of solution. Here 100% water, it means pure water, which is called solvent, and here is 10% sugar and 90% water, that is called solution. Here solvent, which is water, and here solution, in which solute and solvent is mixed. As the definition of osmosis says, the water molecules moves through semi-permeable membrane from its higher concentration to lower concentration. That is the definition of osmosis. The concentration of water here is 100 and here only 90. It means higher concentration इधर है और lower concentration इधर है. The water molecule or solvent cross the semi-permeable membrane from its higher concentration to lower concentration. But how much solvent particle moves across this semi-permeable? It depends the
number of solute dissolved in solution. If this solution is only 5% sugar solution, then the water molecules move slowly. If it is 10%, then the water molecules much more rapidly. If it is 20%, water molecule very quickly, fast move through cell. It means the minimum pressure required to prevent the water molecules to cross this cell membrane is called osmotic pressure of that solution. It means movement of water molecules across the cell membrane depend on the number of solute in the solution. If the number of solute in the solution is less, then the water molecules move very slowly. If the number of solutes are more in this solution, then the water molecules cross this cell membrane very fast. So, OP of a solution directly proportional to number of solute particles in solution. इसका मतलब है किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन में घुले हुए विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कम विलेय 5% है तो जल धीरे धीरे जाएगा, 10% है जल तेज जाएगा, क्योंकि 5 से 10 है ओपी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़े तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर को ज्यादा आने देगा। और अगर 20% है तो ऑस्मोटिक और बढ़ेगा, वाटर और तेजी से जाएगा, वाटर से जाएगा। तो इसी वह कौन सा दाब है? वह मिनिमम दाब, वह न्यूनतम दाब जो जल के अणुओं को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम कहते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब किसका होता है? विलयन का होता है, तनु विलयन का। कम डाइल्यूट का कम होता है और कंसंट्रेट का ज्यादा। जैसे मैंने बताया कि 5% सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे, 10% है तो और फास्ट, 20 है तो और फास्ट। इट मींस कोई ना कोई प्रेशर है जो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ जाने से रोक रहा है, उसी को कहते हैं परासरण दाब। तो सो द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम नेसेसरी प्रेशर which applies to a solution to prevent the incoming flow of solvent particles into it, and the osmotic pressure of any solution depends on the number of solutes in the solution. How much solute particles dissolved in solvent उस पर निर्भर करता है osmotic pressure. नंबर 2 है टर्गर प्रेशर। Turgor pressure TP. When you put a plant cell or any cell, animal cell, in a hypotonic solution. Understand hypotonic? Yesterday I have told you that hypotonic. Thus, given solution which has less concentration in comparison to the cell or cytoplasm is called hypotonic. यानी कि जिस विलयन की सांद्रता कोशिका रस या सेल की तुलना में कम हो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। As a result, when a cell put into the hypotonic solution, as a result due to the osmosis, the water molecules cross the cell membrane or plasma membrane and goes inside to the cell. Goes inside the cell. As a result, cell swells up. Cells becomes turgid. Cells become turgid. When the water molecules enters into the cell, the volume of cytoplasm increase, which push the cell membrane outside, and this cell membrane put a pressure on the cell wall toward the outside. That is called Turgor pressure. Due to osmosis, when a cell is put into the hypotonic solution, then as a result of
water molecules enters into the cell and increase the volume of cytoplasm. That cytoplasm push the pressure into the cell membrane or plasma membrane, and that membrane push the cell wall towards the outside, and the cell becomes enlarged, increase volume, and the pressure of the cytoplasm or cell membrane to the cell wall outside is called Turger pressure. Turger pressure. But in turn, बदले में the cell wall is also put a pressure into the cytoplasm to make it to remain its own position. When the Turger pressure push the cell wall outside, in turn the cell wall also push the cytoplasm inside toward the inside. That is called wall pressure. That is called wall pressure. Generally, the Turger pressure and wall pressure is equal. How much Turger pressure push the cell wall outside? Equally, the cell wall also put a pressure inside. That is called wall pressure or भित्ति दाब. Generally, TP is equal to WP. And Turger pressure और wall pressure एक दूसरे के बराबर होते हैं. And number 3 आ गया diffusion pressure deficit. When the diffusion pressure of pure solvent oblique water is very high, highest. The diffusion pressure of pure solvent or water is highest. When we put some solute, 100% water है, when we put some solute into the water and make solution, the diffusion pressure of that solution becomes less. Again, we are added the amount of solute into the solution, its diffusion pressure becomes very less. शुद्ध जल या विलाय का मिश्रण दाब सबसे अधिक होता है. प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है, जल है, 100% वाटर है, इसका मिश्रण दाब या diffusion pressure सबसे हाईएस्ट होता है. जैसे जैसे हम इसमें कुछ विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं, when we mix some solute into the water and make solution, the diffusion pressure becomes low, लेस हो जाता है. और ऐड कर दिया सॉल्यूट तो और कम हो गया. यानी कि जैसे जैसे हम किसी जल में किसी भी विलाय को मिलाते जाते हैं, उसके मिश्रण दाब में लगातार कमी आती जाती है. इसका मतलब है कि सबसे अधिक मिश्रण दाब होता है जल का, उसमें बने हुए विलेय का और कम, विलेय और कम. सपोज करो कि एक टेंटेटिव डाटा है, फिक्स नहीं है, माना suppose that the diffusion pressure of A, B and C pure water is 100. When we add one spoon sugar, the diffusion pressure becomes low. It means 90 हो गया. तो घट गया ना. इसका कितना था 100, इसका diffusion हो गया 10. और हमने एक स्पून और मिला दिया तो 1 स्पून 90, 1 स्पून एक्स्ट्रा 80 हो गया. As we add solute in the solution, the diffusion pressure continually goes down. It means the diffusion pressure of pure water is highest, or in compared to any solution.
जैसे जैसे सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, उसमें सॉलिड में आ जाएगी, वो कंसंट्रेट हो जाएगा, उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। इसका 100 था, इसका 90 होगा, इसका 80, फिर 3 चम्मच चीनी मिला देंगे तो 70 हो जाएगा। यानी कि किसी विलायक में जितना विलेय पदार्थ मिलाते जाओगे उसका मिश्रण दाब उतना कम होता जाएगा। अब कंपेरिजन करो, इसका कंपेरिजन करो इससे या इसका कंपेरिजन करो इससे, तो किसी भी विलयन का मिश्रण दाब उसके शुद्ध जल के मिश्रण दाब से जितना कम होता है उसी का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नाउ द डिफरेंस of the diffusion pressure of a solution and diffusion pressure of pure water is called diffusion pressure deficit। यहाँ इसका 100 था, यहाँ जाकर 90 हो गया, 10 की कमी आ गई, यहाँ जाकर 80 हो गया, 20 की कमी आ गई, आगे और लेकर 70 जगह 30 की कमी आ गई। यानी किसी विलायक का विलयन बनने पर मिश्रण दाब में जो कमी आती है, द डिफरेंस, द डेफिसिट ऑफ diffusion pressure to make a solution from solvent is called diffusion pressure deficit। शुद्ध जल का कुछ सबसे अधिक होता है, मान लीजिए 100 है, 1 चम्मच चीनी मिलाई, विलयन बन गया तो 10 कम हो गया, 90 रह गया। 2 चम्मच चीनी मिलाई, 20 कम हो गया, 80 रह गया, यानी कि और कम हो गया। इस प्रकार से जैसे जैसे विलायक से विलयन बनता जाता है, विलेय पदार्थ मिलता जाता है, मिश्रण दाब में कमी आ जाती है। इसलिए उस शुद्ध जल के मिश्रण दाब और उससे बने विलयन के दाब में जो अंतर दिखता है, ठीक है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। आई थिंक इट इज क्लियर, बट इट इज वन थिंग क्लियर, इसका मिश्रण दाब तो कम हो रहा है लेकिन साथ साथ में ओपी बढ़ रहा है, परासरण दाब बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं परासरण दाब कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे विलायक बनता है। माना शुद्ध जल का कितना है, 100 है और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी तो कितना हो गया, 90, यानी 10 हो गया, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर तो हो रहा है कम, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वो कितने हो रहा है, इसी के बराबर 10 ओपी बढ़ रहा है, इसलिए 10 डीपी कम हो रहा है। फिर यहाँ 10 और यानी कि 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ सीधे 20 कम हो रहा है। यानी कि एज द डिफ्यूजन प्रेशर becomes low, OP becomes rises up, यानी कि OP बढ़ता रहता है। जिस अनुपात में डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है उसी अनुपात में OP बढ़ता है। यहाँ 10 ज्यादा हुआ तो यहाँ 10 कम, यहाँ 20 ज्यादा हुआ तो यहाँ 20 कम। इट मीन्स OP और DP बराबर है। जैसे जैसे विलेय मिलाएंगे तो परासरण दाब बढ़ेगा और विलेय मिलाएंगे तो मिश्रण दाब कम हो जाएगा। So we can say that DPD of a solution is the drawing power of solution to the solvent। कोई सॉल्यूशन कितना जल को अवशोषित कर रहा है, कितना खींच रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, DPD। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर, चूषण दाब भी कहते हैं। किसी विलायक में जितना विलेय पदार्थ मिलाते जाओगे उसका मिश्रण दाब कम होता जाएगा और परासरण दाब बढ़ता जाएगा। 10 कम ये हुआ, 10 कम ये बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ 20 कम हो गया, यहाँ 20 बढ़ गया। तो इस विलायक और इस विलयन में 20 का अंतर आ गया। इसका मतलब अब यह विलयन जो है वह 20% पानी को खींच सकता है, अपनी ओर चूस सकता है। इसको सक्शन प्रेशर, DPD को ही क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर कहते हैं। और इनमें एक तीनों दाबों में एक संबंध है, द कोरिलेशन बिटवीन अमंग 3 प्रेशर इज DPD इक्वल टू OP माइनस TP। एक फॉर्मूला है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ऑफ एनी सॉल्यूशन is equal to osmotic pressure of that solution minus turgor pressure of the plant solution। DPD is equal to OP minus TP। Here are two conditions। Number one, if the plant cell या animal cell is in a flaccid stage, flaccid माने स्लथ, पिचका हुआ, ठीक है, ये प्लांट सेल है। और इन फ्लैक्सिड स्टेज
the TP of plant cell is 0. जो कोशिका मुरझाई होती है, स्लग होती है, पिचकी होती है, उसका स्फीत दाब 0 होता है। स्फीत कब होगा? जब उसके अंदर पानी जाएगा, उसकी भित्ति बाहर की ओर दबाव डालेगी, तो उसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। लेकिन वो फ्लेक्सिड है, तो if the plant cell is in flaccid stage, then the TP of that plant is 0. At that time, the OP of that cell is equal to the DPD. Why? Put the value of DP here. So DPD is equal to OP minus DP की वैल्यू कितनी होगी? 0, और 0 कुछ होता नहीं। So DPD is equal to OP. Equal to OP. Once again I repeat, if the plant cell is in a flaccid stage and in flaccid stage no TP, turgor pressure is 0. Turgor pressure is 0. So in that condition, the DPD of plant cell is equal to the osmotic pressure of plant cell, because the value of TP is equal to 0. Number 2, if the plant cell is in turgid state, अर्थात जब पादप कोशिका स्फीत अवस्था में है, और वो कब आएगा? When we put this flaccid cell into the water in a hypotonic solution, then due to end osmosis, water molecules moves through the cell wall and cell membrane inside the cell, and ultimately cell becomes enlarged and becomes turgid. So at that time DPT is 0. Why? Because OP and TP are equal. In a turgid state, OP and TP are equal. Put the value of this in this equation. DPD is equal to OP minus TP. ये मेन इक्वेशन है। अब चूंकि OP और TP बराबर है और OP में से क्या हो रहा है? TP घट रहा है, तो at that time DPD will become 0. दोनों वैल्यू बराबर है, OP और TP बराबर है, तो बराबर में से बराबर का यहाँ क्या आएगा? 0. 0 is equal to OP minus TP. At that time TP को रिप्लेस कर दो इधर, तो TP पॉजिटिव हो गया, is equal to OP. In the turgid plant cell, if the cell plant is in turgid state, then at that time turgor pressure of plant cell is equal to the osmotic pressure, and in that condition DPD will become 0. DPD will become 0. आई थिंक समझ गए। और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है इसका। ये है इक्वल प्रेशर, ठीक है, और यहाँ से जितना OP घटता है उतना TP बढ़ता है। जैसे OP अगर 10 घट गया तो TP 10 बढ़ गया, OP और घट गया तो ये और बढ़ गया, OP और घट गया तो ये और बढ़ गया। ये समय आएगा कि OP और TP बराबर हो गए। जैसे ये माना 100 था, ऊपर प्रेशर था, तो 100 में से ये 10 घट गया, ये रह गया 90, तो ये होगा 10, फिर ये रह गया 80, तो ये होगा 20, ये हो गया 60, तो ये हो गया 40, और यहाँ पर हो गया 50-50, क्योंकि OP और TP क्या हो गए? बराबर हो गए। एट दैट टाइम DPD will become 0. This is the correlation between DPD, OP and TP. The main formula is DPD is equal to OP minus TP. Now, next topic, which is called water potential. Water potential.
water potential. The concept of water potential was derived by R.K. Slater and S.A. Toiler in 1960. जल विभव या वाटर पोटेंशियल की अवधारणा या कॉन्सेप्ट दो साइंटिस्ट R.K. स्लेटर और S.A. टॉयलर ने 1960 में प्रेजेंट की या प्रस्तुत की। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, यहाँ तक कि बायो में भी मिल जाएगा आपको, और तीनों में इसका मतलब जो है एक जैसा ही है, थोड़ा सा सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स there are some free energy in the components of every system. It means किसी भी निकाय के कुछ घटकों में कुछ न कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। There are some free energy in the components of a system. किसी सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स या घटक होते हैं उनमें कुछ न कुछ मुक्त ऊर्जा होती है जो उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। They provide capacity to do work. उसी मुक्त ऊर्जा से उस सिस्टम के कंपोनेंट्स या घटक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम किस में करना है? ऑस्मोसिस के संदर्भ में समझाना है इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑस्मोसिस में या डिफ्यूजन में आपने देखा होगा, ऑस्मोसिस चाहे वो एंड ऑस्मोसिस हो और चाहे वो एक्सटर्नल हो। सपोज एक प्लांट सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो यहां से जल के अणु अंदर जाएंगे क्योंकि हाइपर है। और यदि इसी प्लांट सेल को हमने किसमें रख दिया? हाइपरटोनिक में रख दिया, तो जल के अणु बाहर आएंगे। तो ये जल के अणु का एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन टू कंपोनेंट्स। यानी एक कंपोनेंट हो गया सेल, एक कंपोनेंट हो गया गिवन सॉल्यूशन वाटर, चाहे वो हाइपोटोनिक हो, और ये हो गया कंपोनेंट हो गया सेल का साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया हाइपरटोनिक। इन दोनों घटकों में जल के अणु अंदर जाने या जल के अणु का बाहर आना ये निर्भर करता है कि जल के अणुओं की जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है। अब ये फ्री एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको पता है कि जो जल के अणु, सपोज करो कि 100% वाटर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, और इसके अंदर जो है 80% क्या है वाटर है, यहाँ 100% है, तो इसमें भी वाटर है, इसके अंदर इसमें भी वाटर है, परंतु ये डायल्यूट है और ये कंसंट्रेट है। किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा है तो यहाँ फ्री एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ 80% वाटर, यहाँ 100 वाटर है, तो फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। यहाँ 100% जल है, उसमें भी मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी है। यहाँ 80% जल है, शेष 19-20% जो वो अन्य भाग है, तो यहाँ भी मुक्त ऊर्जा है, लेकिन दोनों की मुक्त ऊर्जा में अंतर है, और मुक्त ऊर्जा जहाँ से ज्यादा होगी वहां से कम की ओर जाएगा। यहाँ मुक्त ऊर्जा ज्यादा है तो यहाँ से जल के अणु यहाँ जाएंगे। यानी परासरण को हम जल विभव के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये परासरण को समझने का एक और तरीका है। इट इज द अनदर वे या सेकंड प्रोसेस टू एक्सप्लेन द ऑस्मोसिस, why the water molecules goes inside the cell and comes outside the cell. It is depend on the free energy of solvent or cell. तो इस जल के अणुओं में फ्री एनर्जी है, इसके अंदर जल है उसमें फ्री एनर्जी है। क्योंकि यहाँ जल के अणु कम है तो फ्री एनर्जी कम होगी, यहाँ जल के अणु ज्यादा है तो फ्री एनर्जी होगी, और इन दोनों के फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको? और जिसकी मुक्त हो जाए, इसलिए
शुद्ध जल या विलायकी में जल के अणु जाते हैं तो उनका मुक्त ऊर्जा अधिक है, वह अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ जाते हैं, इसी का नाम जल विभव है। क्या नाम है? जल विभव। और यहाँ पर उल्टा है, ये हाइपरटोनिक है और ये 80% है, ये उससे भी कम है। तो जल अब इसके अंदर जल के अणु ज्यादा हैं, बाहर कम है, तो इसके अधिक ऊर्जा से कम क्यों रहेगा? तभी तो किसी सिस्टम के अलग अलग घटकों में कुछ ना कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। अब किसमें ज्यादा है? अधिक मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा की ओर जाता है। यहाँ मुक्त ऊर्जा अधिक है, इसके अंदर कम है, तो जल का प्रभाव यहाँ से इधर की ओर होगा। किस कारण? जल विभव के कारण। उसका नाम है दोनों, ये एक सिस्टम के दोनों घटकों में मुक्त ऊर्जा में जो अंतर है वही जल विभव है, और वही तय करेगा कि जल कहाँ से कहाँ को जाएगा, या तो उसके अंदर जाएगा कोशिका के, या कोशिका से बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब इसके अंदर मुक्त ऊर्जा ज्यादा है, बाहर क्या है? कम है, तो बाहर अंदर से बाहर आ रहा है। Water potential is denoted by a Greek word psi, psi, psi। ये उसका सिंबल है, उसको psi कहते पुकारते हैं। इसको डिनोट कैसे? एंगल को थीटा से करते हैं, किसी को डेल्टा से करते हैं, किसी को कहते हैं। इसलिए वाटर पोटेंशियल को ग्रीक वर्ड psi से डिनोट कहता है, और जिसकी यूनिट होती है बार, बार या एटमॉस्फेयर, बार या एटमॉस्फेयर। नाउ हाउ द वाटर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड? शुद्ध जल यानी प्योर वाटर और विलायक यानी कि सॉल्वेंट, प्योर वाटर ऑब्लिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इसका एब्सोल्यूट वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर और सॉल्वेंट। सो इट इज कंसिडर्ड दैट द वाटर पोटेंशियल ऑफ शुद्ध प्योर वाटर बिकम्स जीरो। शुद्ध जल या विलायक का जल विभव की गणना करना संभव नहीं होता है, इसलिए उसको शून्य माना जाता है, निर्देश, एब्सोल्यूट। द एब्सोल्यूट वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर सॉल्वेंट इज नॉट इजीली कैलकुलेटेड, सो इट इज कंसिडर्ड द वैल्यू जीरो। बट व्हेन द solute is added in the pure water, solute is added, as we tell you in DPD, solute added, the diffusion pressure is becomes low। जल का हमने बताया कुछ देर पहले 100 है, ठीक है, और उसमें हमने 1 चम्मच 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया तो उसका कितना हो गया? 90 हो गया, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो गया, फ्री एनर्जी यहां ज्यादा थी वाटर की, यहां कम हो गई। एज वी एड सम सॉल्यूट इनटू द प्योर सॉल्वेंट, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स लो, because the free energy of water is becomes low and water potential becomes low. As we add 1 spoon extra, then it becomes 80, और कम हो गया। किस कारण हुआ ये? वाटर पोटेंशियल कारण। हालांकि हमें पता है डीपी कम हो रहा है, ये डीपी कम क्यों हो रहा है? वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, और मुक्त ऊर्जा कम हो रही है तो जल विभव कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सॉल्यूट के मिलाने का हो रहा है, 1 स्पून यहाँ पर मिलाया, 1 स्पून आ रहा है, ठीक है, तो उसके कारण कम हो रहा है। ये जो कमी आ रही है इसको हम कहते हैं क्या? परासरण विभव, परासरण विभव या सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक परासरण विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। But we know that osmotic potential is increased, जैसे जैसे dP कम होता है वो भी बढ़ता है,
जितना डीपी कम होगा उतना वो बढ़ेगा। यहाँ 10 कम हो रहा है, यहाँ 10 बढ़ेगा, यहाँ 10 और कम हो रहा है, यहाँ 10 और बढ़ेगा। कुछ देर पहले बताया था कि जितना डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर 10 बढ़ गया एक चम्मच से तो 10 कम हो गया डीपी, 10 और एक चम्मच में आया 10 बढ़ गया, यहाँ 10 कम हो गया 20 कम हो गया, वहाँ 20 बढ़ गया। I want to say that as we add any solute into the pure water, the dP and water potential becomes low. Similarly, OP is rises up, and the value of OP and solute potential is equal. जितना परासरण विभव कम होता है उतना परासरण दाब बढ़ता है। ये परासरण विभव कम हो रहा है क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है सॉल्यूट के मिलाने से, तो वो सॉल्यूट के कारण तो गिर रहा है, लेकिन इसका यहाँ कोई सॉल्यूट नहीं तो 100 है, जैसे ही सॉल्यूट लगा 90 हो गया। जिस लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सॉल्यूट, सो दैट इज कॉल्ड परासरण विभव या सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं psi s। So the value of psi s is always negative, क्योंकि यहाँ कितना कम हो रहा है 10 कम हो रहा है तो नेगेटिव है, 10 और कम हो रहा है नेगेटिव है। परासरण विभव यानी psi s का मान कम होता है, उतना ही यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये प्लस में +10 +10, इट मींस द osmotic pressure and osmotic potential and osmotic potential are always equal. The numerical value of osmotic pressure and osmotic potential is equal. Now, but osmotic pressure is in positive and osmotic potential is negative. जैसे ये +10 है तो ये -10, ये +10 और है तो ये -10 और है। ये 100 में से 90 हुआ तो यहाँ 10 बढ़ गया, या 100 में से 80 हुआ तो यहाँ 20 बढ़ गया। जितना जितना परासरण विभव कम होता जाएगा उतना अधिक परासरण दाब बढ़ता जाएगा। दोनों की वैल्यू या मान समान होता है, परासरण दाब ओपी का और परासरण विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, इनकी वैल्यू बराबर होती है, परंतु परासरण विभव का मान नेगेटिव होता है और परासरण दाब का मान पॉजिटिव होता है। सो हम वाटर पोटेंशियल को दिखाते हैं psi w, psi का सिंबल हो गया psi w इज psi s प्लस psi s रुको इतना हो, एक मिनट रुको, ये बात सूत्र आएगा। ओपी और ये दोनों बराबर हो गए। अब आ जाओ तीसरा, take a cellophane membrane which is semi permeable and fill it with 10% sugar solution। एक सेलोफेन की झिल्ली में 10% शर्करा का घोल भरो और उसके मुंह को बंद कर दो और इसको एक ऐसे बीकर में हैंग कर दो, किसमें, जिसमें 100% वाटर है। इट मींस ये हाइपोटोनिक है और ये कौन सा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। 10% शर्करा के घोल से भरी हुई सेलोफेन की थैली को आप एक जल से भरे हुए बीकर में डाल दो। पुट a 10% sugar solution of cellophane membrane into a beaker filled with water. After some time you will see that water molecules entered into the solution through cellophane membrane and this membrane becomes turgid, ये फूलती जाएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा। This membrane put a pressure on the water, जैसे जो फैलेगा वो जल पर दबाव डालेगा, उसे कहते हैं क्या, उसे पोटेंशियल पैदा होता है, उसे कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और वो प्रेशर पोटेंशियल क्या करेगा, जल के अणुओं को अंदर आने से रोकेगा। एक सेलोफेन
कि थैली में 10% शर्करा का बहुत बड़ा फिल्ड ए सिलिकॉन मेम्ब्रेन विद 10% sugar solution and put into in a pure water through due to the end osmosis the water molecules enters into the cerebral membrane, so it slowly target and put a pressure on water molecules, so a potential is raised or produced which is called pressure potential psi p. P for pressure or psi p potential. The value of pressure potential is always positive, so we can say that water potential is equal to psi s, osmotic potential plus pressure potential. Please note that the osmotic potential value of osmotic potential is always negative and the value of pressure potential is always positive. So a new formula comes out. Water potential is equal to osmotic potential plus pressure potential. Another potential is matrix potential. Matrix potential. When we put a plant cell in pure water, the layer of cell which is contact with the water, the layer of the cell, the area of the cell which is directly attached to the water, that surface is called matrix. And it also put a pressure on the water and creates a potential which is called matrix potential. ध्यान से सुनो, जब हम किसी पादप कोशिका को जल से भरे हुए बीकर में रखते हैं तो कोशिका की वह सतह सरफेस या एरिया जो जल के संपर्क में होती है, इतना नहीं है संपर्क में, केवल इतना ही संपर्क में है, इस सतह को मैट्रिक्स कहते हैं। और यह मैट्रिक्स भी क्या है, जल पर दबाव डालती है। अब कितना डालती है तुम्हें पता है, कोशिका कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, ये बस कुछ ना कुछ दबाव डालेगी। ठीक है, इसी कारण एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसका नाम है मैट्रिक्स पोटेंशियल साई एम, और इसकी वैल्यू भी होती है नेगेटिव। तो होती है नेगेटिव। हालांकि रूट हेयर जब से एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल, वहां पे इसका महत्व है, यानी कि मैट्रिक्स पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट इन द सॉइल बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन प्लांट पार्ट्स। जो पौधों के भागों में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल मृदा में इसका महत्वपूर्ण है। सो इफ वी आल्सो एडेड दिस इन दिस फॉर्मूला, सो वी कैन से दैट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस pressure potential plus matrix potential. The value of osmotic potential is negative, the value of matrix is also negative, only the pressure potential is positive. ये न्यू फॉर्मूला होगा। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू osmotic potential plus pressure potential plus matrix potential. The value of osmotic potential and matrix potential are negative, while the value of pressure potential is positive. Although I said that the matrix potential is not important in the plant part, it is some value in matrix. So main formula इसको हम अगर नेग्लिजिबल करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। At last topic is imbibition. अर्थात अंतः शोषण। During rainy season, we have observed that our doors and windows get inflamed and
दे डू नॉट इजीली ओपन और क्लोज। बरसात के दिनों में हमने देखा कि हमारे दरवाजे और खिड़कियां जो लकड़ी के बने होते हैं वे नमी ग्रहण कर लेते हैं, फूल जाते हैं और वे आसानी से न तो बंद होते न खुलते हैं। ये सबने महसूस किया होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एनी सॉलिड सब्सटेंसेस get swell, get turbid by absorbing water without making solution, बिना विलयन बनाए वह सॉल्यूशन नहीं बनाता। कोई भी ठोस पदार्थ है वह नमी को ग्रहण करता है, फूल जाता है, आकार में बड़ा होता है, आयतन बड़ा होता है, लेकिन वो विलयन नहीं बनाता। Any solid substance without making solution absorb water and becomes swells up, increase its volume. That is called imbibition. In modern terms, it is also called adsorption. अधिशोषण भी कहते हैं इसको, अंतःशोषण तो कहते हैं और अधिशोषण भी कहते हैं, adsorption. How much water it absorbs, it depends on the texture of substance. उसकी बनावट कैसी है उसी हिसाब से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। How much any solid substances absorb the water or moisture, it depends on texture of substances, affinity of substance with water, यानी उस पदार्थ की जल के साथ कितनी बंधुता है। नंबर 3, टेम्परेचर इज प्लेज आल्सो ए वाइटल रोल। इसमें तापमान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इसके दो यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी सो एनी सीड, जब हम किसी बीज को बोते हैं, बरसात होती है, रेनी सीजन में बीज बोते हैं, खेती करते हैं, तो जो सीड होते हैं वो ड्राई होते हैं और वे धीरे धीरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने से एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है, तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, एक प्लूमिन और एक रेडिकल, प्रांकुर और मूलांकुर। ये किसमें है? इम्बाइबिशन। बीज का जल अवशोषण करके फूल जाना, भ्रूण का सक्रिय होना और प्लूमिन से शूट और रेडिकल से रूट डेवलप हो जाता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। नंबर 2, ए प्लांट स्टेम व्हिच इज कट, पौधा काट दिया, फूट लिया, इट इज ड्राइड अप, बट इन रेनी सीजन it absorbs water and becomes germinate. That is called resurrection of water. Resurrection of plant, पौधों का पुनर्जीवन। तो बीजों का अंकुरण होना, उसके अलावा कटे हुए वृक्ष का जो लगभग सूख जैसा रह जाता है, लेकिन बरसात में पुनः जो शाखाएं या कोपले नए बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट। थैंक यू। और ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो इसके आप नोट्स बनाइए और हम आगे में नया टॉपिक शुरू करेंगे।